Hello friends, how are you all? I welcome you on this new video of 1% Better Everyday series. So basically in this series I explain the topic which I have read today by investing my 15 minutes or 20 minutes of time which I show to you on this YouTube channel only by the medium of my another series named as 20 minutes towards success. I don't know, there may be some marriage function or something. IPL T20 is today because some of the bastards are using firecrackers at this time, and now it's been I think 10:30. So today's session I have read the 13th chapter named as how to stop procrastinating by using the 2-minute rule. This one, as you can see here, and it's not that much hectic part, but I have read a small portion from it, and the main part I will read tomorrow, and it is consist of main part is of 1 2 3 4 5 6. Main part is consist of 5 to 6 pages, and one is half this the 2-minute rule. The 2-minute rule I have not read till now, whereas I am thinking of reading it tomorrow. So let's start with Thaima Thap. Sorry. I don't know whether I am coming in my frame or not because I don't have my cameraman today present here. Let's begin. Twyla Tharp is widely regarded as one of the greatest dancers and choreographers of the modern era. ट्वाइला थार्प नाम की एक जो लड़की है तो उसे ग्रेटेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर ऑफ द मॉडर्न एरा इस नाम से बहुत जाना जाता है. इन 1992 शी वॉज अवार्डेड अ मैक आर्थर फेलोशिप ऑफन रेफर्ड टू एज द जीनियस ग्रांट. तो उनको 1992 में मैकआर्थर फेलोशिप मिली थी जिसे कि जीनियस ग्रांट माना जाता है, यानी कि बहुत ही उच्च दर्जे का अवार्ड. वी कैन सी इट इज़ लाइक पद्मश्री एज वी हैव आवर इंडियाज़ टॉप मोस्ट अवार्ड, and she has spent the bulk of her career touring the globe to perform her original works. And here it is mentioned that she has passed her most of time in traveling throughout the globe to perform her original work to show her skills. She also credits much of her success to simple daily habits. वो अपने सक्सेस का रीज़न अपने सिंपल डेली हैबिट्स को बताती है. हाँ, आई बिगिन. कैमरामैन देखो तो नजर आ रहा हो क्या नहीं? ये बिल्कुल नहीं. देखो कैमरामैन मैंड किया चलो एक वो रिकॉर्डिंग पचका होईल माझं. हाँ चलो. I begin each day of my life with a ritual. मैं अपना दिन एक रिचुअल या उसे कह सकते हैं हम रिचुअल को मराठी या फिर हिंदी में शब्द क्या है. हाँ, मैं अपना दिन एक रस्म से शुरू करती हूँ. तो उन्होंने कहा है I wake up at 5:30 AM, put on my workout clothes, my leg warmers, my sweatshirt and my hat. तो वो जब 5:30 बजे उठती है सुबह तो वो वर्कआउट क्लॉथ
अपने लेग वर्कआउट क्लॉथ पहन लेती है, लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और हैट भी पहन लेती है। आई वॉक आउटसाइड माई मैनहट्टन हाउस, हेल अ टैक्सी and tell the driver to take me to the pumping iron gym at 91st Street and 1st Avenue where I work out for 2 hours। हाँ, तो हेड पे तो वो अपने मैनहट्टन के घर से बाहर निकलती है और एक टैक्सी को बुलाती है, जिसमें कि वो अपने ड्राइवर से कहती है कि मुझे पंपिंग आयरन जिम ले चलो, जिसका एड्रेस है 91st स्ट्रीट 1st एवेन्यू, जहाँ पे वो वर्कआउट करती है अपने 2 आवर्स का वर्कआउट करती है। द रिचुअल इज़ नॉट द स्ट्रेचिंग एंड weight training I put my body through each morning at the gym. The ritual is the cap. The moment I tell the driver where to go, I have completed the ritual। तो वो यहाँ पे कहती है कि रिचुअल वो नहीं है कि जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही होती हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे हिसाब से रिचुअल ये है कि मैं जब कैब को बुलाती हूँ, वो मोमेंट जब मैं टैक्सी ड्राइवर को कहती हूँ कि मुझे इस जगह पे जाना है, तो उस टाइम पे वो अपना रिचुअल कंप्लीट कर चुकी होती है। इट्स अ सिंपल एक्ट बट डूइंग इट द सेम वे ईच मॉर्निंग हैबिचुअलाइज इट, मेक इट रिपीटेबल, इजी टू डू। ये बहुत सिंपल काम है, लेकिन इसे बार बार हर सुबह करने से मुझे इसकी आदत पड़ गई है और ये बहुत रिपीटेबल बन गया है मेरे लिए, और रिपीटेबल होने की वजह से बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए, इजी टू डू हो गया है। It reduces the chance that I would skip it or do it differently। तो इतनी ज़्यादा बार इसको परफॉर्म करने की वजह से ये जो मेरी रिचुअल या फिर मेरी हैबिट है, उसको स्किप करने का और डिफरेंटली ट्राई करने का चांस बहुत ही कम कर देती है। इट इज़ वन मोर आइटम इन माई आर्सेनल ऑफ रूटीन्स एंड वन लेस थिंग टू थिंक अबाउट। तो यहाँ पे वो कहती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, और वो मेरे रूटीन में है, मेरे रूटीन में है। आगे का पढ़ता हूँ। Hailing a cab each morning may be a tiny action, but it is a splendid example of the third law of behavior change। तो कैब को हर सुबह बुलाना एक बहुत ही छोटा काम लग सकता है, लेकिन ये काम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का। Researchers estimate that 40 to 50% of our action on any given day are done out of habits। तो रिसर्चर्स अपनी रिसर्च से ये बताते हैं कि हम जो अपना दिन पूरा स्पेंड करते हैं, तो उसमें के जो भी एक्शंस होते हैं, उनमें से 40 to 50% हमारे एक्शन हमारे हैबिट के तहत होते हैं। This is already a substantial percentage, but the true influence of your habit is even greater than these numbers suggest। ये तो बस एक रेफरेंस पॉइंट है परसेंटेज का, लेकिन अगर आप अपने हैबिट्स में झांकोगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 40 to 50% नंबर दिखाया गया है, तो इससे बड़ा भी हो सकता है आपका नंबर हैबिट के ऊपर रिलाई करने का। हैबिट्स आर ऑटोमेटिक चॉइसेस दैट इन्फ्लुएंस द कॉन्शियस डिसीजन दैट फॉलो। तो हैबिट्स जो है वो ऑटोमेटिक होने लगती है, हमारे ऑटोमेटिक चॉइसेस होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस डिसीजन को फॉलो करती है। Yes, a habit can be completed in just a few seconds, but it can also shape the action that you take for minutes or hours afterward।
हाँ हैबिट्स कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो सकती है, लेकिन वो हैबिट परफॉर्म होने के बाद आपकी जो कुछ घंटों के या फिर मिनटों के एक्शंस होते हैं उसको भी शेप कर सकती है। हैबिट्स आर लाइक द एंट्रेंस रैम्प टू अ हाईवे। हैबिट्स एक हाईवे की एंट्रेंस रैम्प की जैसी है। दे लीड यू डाउन अ पाथ एंड बिफोर यू नो इट यू आर स्पीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट बिहेवियर। वो आपको नीचे के पाथ में ले जाती है और जब आपको पता चलने से पहले आप अपने नेक्स्ट हैबिट पर स्पीड कर रहे होते हो। इट सीम्स टू बी ईजियर टू कंटिन्यू वॉट यू आर ऑलरेडी डूइंग देन टू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। इट सीम्स टू बी ईजियर टू कंटिन्यू वॉट आर। हाँ, तो हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं वो हमें बहुत ईजी लग सकता है एज कंपैरिजन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू या फिर डिफरेंट। यू सिट थ्रू अ बैड मूवी फॉर 2 hours। सैयारा। यू कीप स्नैकिंग इवन व्हेन यू आर ऑलरेडी फुल। तो कितनी भी घटिया मूवी हो तो आप वो मूवी देखते वक्त 2 घंटे तक एकदम स्टडी बैठते हो मूवी ख़त्म होने तक, और आपका पेट भरा हुआ होते हुए भी आप स्नैकिंग यानी कुछ ना कुछ खाते रहते हो मूवी देखते टाइम। यू चेक योर फोन फॉर जस्ट अ सेकंड एंड सून यू हैव स्पेंड 20 minutes स्टेयरिंग एट द स्क्रीन। आप बस सोचते हो कि एक ही सेकंड के लिए देख लूँगा, और देखते देखते आपके 20 मिनट कैसे बीत गए मोबाइल को देखते, स्क्रीन को देखते देखते आपको आइडिया भी नहीं लगता। इन दिस वे द हैबिट्स यू फॉलो विदाउट थिंकिंग ऑफर डिटरमाइन द चॉइसेस यू मेक व्हेन यू आर थिंकिंग। तो कुछ इस तरीके से कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो हम फॉलो करते हैं विदाउट थिंकिंग, तो वो हमारी चॉइसेस को डिटरमाइन कर सकती है, हमारी चॉइसेस को बदल सकती है, ढाल सकती है जब हम सोच रहे होते हैं। ईच इवनिंग देयर इज़ अ टाइनी मोमेंट यूजुअली अराउंड 5:15 PM दैट शेप्स द रेस्ट ऑफ माई नाइट। तो हर शाम एक छोटा टाइम पीरियड होता है जो यूजुअली अराउंड 5:15 बजे, जो कि मेरी हर रात को शेप करता है। माई वाइफ वॉक्स इन द डोर फ्रॉम वर्क एंड either वी चेंज into our workout clothes and head to the gym, or we crash onto the couch, order Indian food and watch The Office। तो यहाँ पे हमें राइटर बताते हैं कि शाम का जो एक छोटा टाइम पीरियड होता है अराउंड 5:15 बजे, तो उसमें वो जो टाइम पीरियड होता है वो राइटर की पूरी रात को शेप करने का काम करता है। कुछ ऐसे कि जब उनकी वाइफ काम करके घर आती है तो वो या तो अपने वर्कआउट क्लॉथ्स पहनते हैं और जिम को जाते हैं, नहीं तो काउच पे बैठते हैं, इंडियन फूड ऑर्डर करते हैं और द ऑफिस नाम का प्रोग्राम देखने लगते हैं। सिमिलर टू ट्वाइला थार्प हेलिंग द कैब, द रिचुअल इज चेंजिंग इनटू माय वर्कआउट क्लॉथ्स। तो ट्वाइला थार्प का जो रिचुअल था वो था कैब को बुलाना। तो इस टाइम पे राइटर का रिचुअल है कि वर्कआउट क्लॉथ पहनना। इफ़ आई चेंज क्लोथ्स आई नो द वर्कआउट विल हैपन। अगर मैं जिम क्लोथ्स पहनूंगा तो मुझे पता है कि मेरा वर्कआउट होगा। एवरीथिंग दैट फॉलोज ड्राइविंग टू द जिम, डिसाइडिंग विच एक्सरसाइज टू डू, दररोज काय करतो सांग की मला. व्हिडिओ नंतर बोल.
Everything that follows, driving to the gym, deciding which exercises to बंद do, कर दिया. stepping under the bar is easy once I have taken the first step. तो जो भी मेरे डिसीजन होते हैं, जैसे कि जिम के लिए ड्राइव करना या आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो कौन सी परफॉर्म करनी है, या फिर किसी बार में जाना है, तो वो काफ़ी मुझे आसान लगता है जब मैं अपना फर्स्ट स्टेप लेता हूँ उसके रिगार्डिंग. Every day there are a handful of moments that deliver an outsized impact. तो हर दिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि बहुत मेरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट कर जाते हैं. आई रेफर टू दीज लिटिल चॉइसेस एज डिसिसिव मोमेंट्स. तो मैं इन छोटी चॉइसेस को डिसिसिव मोमेंट्स इन नाम से पुकारता हूँ. द मोमेंट यू डिसाइड बिटवीन ऑर्डरिंग टेक आउट और कुकिंग डिनर. टाइम पीरियड जिसमें आप सोचते हो कि आज मैं खाना ऑर्डर करूं या फिर बनाऊं. टाइम पीरियड जिसमें कि आप सोचते हो कि मैं आज कार ड्राइव करूं या बाइक. टाइम पीरियड जिसमें आप सोचते हो कि मैं होमवर्क स्टार्ट करूं या फिर वीडियो गेम कंट्रोलर लेके खेलते बैठूं. दीज चॉइसेस आर अ फोक इन द रोड. तो ये जो चॉइसेस है, ये फोक इन द रोड मतलब मैं इन द सेंस आपको कह सकता हूँ, ये जो है वो आपको अच्छी हैबिट से रोकती है. डिसिसिव मोमेंट सेट द ऑप्शन अवेलेबल टू फ्यूचर. डिसिसिव मोमेंट जो है तो वो आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑप्शन सेव करती है. हाँ, डिसिसिव मोमेंट जो है वो आपके फ्यूचर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल करती है. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अभी बताऊं तो किसी रेस्टोरेंट में जाना एक डिसिसिव मोमेंट है. बिकॉज़ ये मुझे सोचने पे मजबूर कर देगा कि मैं आज लंच के लिए क्या खाऊंगा. टेक्निकली यू आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू ऑर्डर. तो टेक्निकली देखा जाए तो आप अपने खुद के कंट्रोल में हो कि आप खुद सोच के बैठे होंगे. टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि आपको जो खाना है वो आप ऑर्डर कर सकते हो और आप खुद के कंट्रोल में हो. बट इन अ लार्जर सेंस यू कैन वंस ऑर्डर एन आइटम इफ़ इट इज़ ऑन द मेनू. और अगर उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम जो ऑर्डर करने वाले हैं तो वो हम तभी ऑर्डर करेंगे जब वो मेनू में होगा. हाँ, इफ़ यू वॉक इन टू स्टीक हाउस यू कैन गेट अ सिरलॉइन और अ रिब आई, नॉट सुशी. तो जब आप किसी स्टीक हाउस में जाते हो, पता नहीं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट का नाम होगा, तो वहाँ पे आपको सिरलॉइन मिलेगा, रिब आई मिलेगा, डिशेस होंगी अलग अलग. वहाँ पे आपको सुशी नहीं मिलेगी. सुशी मतलब एक टाइप की कुकी होती है जो कि जापान में बनती है. मिठाई बोल सकता हूँ. तो स्टीक हाउस में जाने के बाद आपको सिरलॉइन या फिर रिब आई मिलेगा, ना कि सुशी. योर ऑप्शंस आर कंस्ट्रेंड बाय व्हाट्स अवेलेबल, दे आर शेप्ड बाय द फर्स्ट चॉइस. तो जो आपके ऑप्शन होते हैं, हाँ, तो आपके सामने जो अवेलेबल है आपके सामने जो अवेलेबल है तो उसी को लेकर आप खुद के ऑप्शंस चूज़ करते हैं. दे आर शेप्ड बाय द फर्स्ट चॉइस. तो आपकी फर्स्ट चॉइस से ये डिटरमाइन हो जाता है कि आपके ऑप्शंस क्या होने वाले हैं. वी आर लिमिटेड बाय वेयर आवर हैबिट लीड अस. तो हमारी आदत हमें जहाँ ले जाती है वहाँ तक ही हम सीमित हैं.
दिस इज वाय मास्टरिंग द. पप्पाने घेतले होते बघ. मोठीच की छोटी नाही बा. मी तर घेत नाही. वी आर लिमिटेड वेयर आवर हैबिट्स लीड अस. तो जहाँ पे हमारी आदतें काम आने लगती है वहाँ पे हम सोचना बंद कर देते हैं. दिस इज़ वाई मास्टरिंग द डिसिसिव मोमेंट्स थ्रू आउट योर डे इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो इसी कारण की वजह से डिसिसिव मोमेंट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल में लेना या फिर उन पर एक बार ध्यान रखना थ्रू आउट योर डे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो हर एक दिन बहुत सारे मोमेंट्स का बना हुआ होता है, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे हैबिचुअल चॉइसेस होती है जो कि आपका पाथ डिटरमाइन करती है. द लिटल चॉइसेस स्टैक these little choices stack up, each one setting the trajectory for how long you spend the next chunk of time. तो ये जो छोटी छोटी चॉइसेस होती है वो तो ये जो छोटी छोटी चॉइसेस होती है वो एक के ऊपर एक स्टैक. मी झोपल्यावर तर मस्त बोलत बसा की फोनवर माझ्या बाजूला. अभ्यास केलेली तर होते की. तो ये जो चॉइसेस होती है हो करू दिल्यावरच करेल की माणूस. हाँ हो की. सुनो भाई, ये सुन लो. काढून बघितले लगेच ठेवले. तेवढीच तुला कॅरी बॅग वाजवल्यानं एवढी गाढ झोप लागलेली. मला बाजूला बोललेलं कोणीतरी झोप लागलेली, गाढ झोप लागली की उठत नाही. हा दुपारी किती लाईट लावली होती बाजूला, फोनवर बोल लागले सगळे. तो होतीस तू नुकतीच आली होतीस तू भी बोल लागली. बूंदी. ये जो छोटी छोटी चॉइसेस होती है वो इसके ऊपर एक स्टैक होने लगती है और आपका ये जो छोटी छोटी तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती चॉइसेस होती है तो वो एक के ऊपर एक स्टैक होने लगती है और वही आपकी दिन भर की ट्रैजेक्टरी सेट करती है कि आपका दिन प्रोडक्टिव होगा या फिर नहीं. वो ये जो ट्रैजेक्टरी सेट होने लगती है तो वो डिटरमाइन करती है कि आपका दिन कैसे बीतने वाला है. हैबिट आर द एंट्री पॉइंट नॉट द एंड पॉइंट. हैबिट्स जो है वो हमारी एंट्री पॉइंट होती है ना कि एंड पॉइंट. दे आर द कैब नॉट द जिम. हमारी हैबिट्स कैब होती है नॉट द जिम. तो चलो आज के लिए बस, भाई को वीडियो बनाना है. तो चलो भाइयों, अगर यहाँ तक कोई दिख रहा है तो प्लीज़ जाने दो, वो सब आपके ऊपर है. तो बाय बाय. कल मैं भी लगा ऐसे ही किसी ज्ञान की चीज़ से. और हाँ, मैं कल लाने वाला हूँ द 2-minute रूल टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग. सो बी अटेंटिव फॉर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.